Hello students, good morning. Today we are going to start our chapter number 3, Life in the Northern Plains. Before this, in our first chapter we read about the physical divisions of India. Physical divisions of India. As we know very well that in India there are 6 physical divisions named. First is Northern Mountains, second is the Northern Plains, third is the Eastern and Western coastal areas, fourth is islands, fourth is the Great Indian Desert, fifth is Southern Plateaus, and the last is the islands. Already we read about all these 6 in very detail. In detail we already learn about all this. Northern mountains, northern plains, northern, eastern, western, southern, these all are related to the directions. Northern means related to north direction, southeastern means related to east direction, western means related to west directions. These all are related to the directions. We know very well that on the map at the top always written N. मैप के टॉप के ऊपर हमेशा आपको N दिखा मिलेगा. This N indicates the north direction. ये N हमेशा north direction को indicate करता है. And opposite to north there is south direction, and in left hand side there is west direction, and in right hand side that is east direction. Except these 4 directions, we already learned about the 4 sub directions, that is northeast, northwest, southeast and southwest. These are the 4 sub directions. If you know about one direction, अगर हमें सिर्फ north direction दे दी जाए मैप के ऊपर and कहा जाए कि you have to find all the 4 directions, तो with the help of only one direction we can find the all directions easily. अगर हमें सिर्फ एक direction का पता है तो हम easily बाकी की 3 directions का पता लगा सकते हैं. But at the top of the map there is always north direction, और अगर हमें north direction का पता है तो हम मैप के ऊपर सभी directions का पता लगा सकते हैं. After this we read these physical divisions in detail on the map. हमने मैप के ऊपर भी इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ा था कि किस एरिया में कौन सा फिजिकल डिवीज़न पाया जाता है. हमने मैप ड्रॉ किया था और मैप ड्रॉ करके ही हमने सभी फिजिकल डिवीजन्स को केयरफुली पढ़ा था. लाइक दिस. We make our map like this on blackboard. Something like this, not exactly but something like this. फर्स्ट था हमारा नॉर्दर्न माउंटेन्स. नॉर्दर्न माउंटेन्स हमें पता है इसके नाम से कि नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, एंड दिस एरिया, दिस फिजिकल डिवीजन कम्स विद इन दिस एरिया. जम्मू एंड कश्मीर, ले या लद्दाख, एंड इन उत्तराखंड. दिस एरिया कवर्स द northern mountains. Northern mountains. Okay. The area of Jammu Kashmir,
Ladakh and Uttarakhand covers the area of northern mountains. Means कि नॉर्थ डायरेक्शन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में जो माउंटेन्स की सीरीज आती है उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्दर्न माउंटेन्स बोलते हैं। इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू, सेकंड है कश्मीर एंड थर्ड है लद्दाख। हमने स्टेट एंड कैपिटल्स भी रीड किए थे। वी नो वेरी वेल अबाउट द कैपिटल्स। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल होती है श्रीनगर एंड द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह। क्लियर? लद्दाख की कैपिटल लेह एंड जम्मू एंड कश्मीर कैपिटल इज श्रीनगर। वी नो वेरी वेल अबाउट दिस। उसके बाद एक टॉपिक आया इसमें अबाउट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख कि क्या है इनमें। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर नोन फॉर देयर ब्यूटी, कि इनको इनकी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पर जितनी भी वैलीज है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, दे ऑल आर कवर्ड विद स्नो और वी कैन से कवर्ड विद आइस ऑल ओवर द ईयर, कि पूरे साल these are covered with the these mountain peaks are covered with the ice, ये बर्फ से ढके होते हैं और इसीलिए they are known for their beauty and the another name for them is heaven on earth। जम्मू एंड कश्मीर को हेवन ऑन अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, कि अगर धरती पर कहीं हेवन मीन्स होता है स्वर्ग, कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कहाँ है? इन जम्मू एंड कश्मीर या श्रीनगर। ओके, तो हमारे चैप्टर में भी यही है कि दिस रीजन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट जम्मू, सेकंड कश्मीर एंड थर्ड इज लद्दाख। उसके बाद इनकी कैपिटल्स के बारे में बताया गया है। द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर एंड द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज लेह। जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स। जम्मू और कश्मीर फेमस है किसके लिए? इसके जो माउंटेन पीक्स हैं वो स्नो से कवर्ड है और उस चीज़ के लिए ये फेमस है, प्रसिद्ध है। फॉर देयर ब्यूटीफुल वैलीज, अपनी वैलीज के लिए, लेक्स के लिए, रिवर्स के लिए, एवरग्रीन ट्रीज के लिए लाइक पाइन एंड चिनार, पाइन एंड चिनार, दीज आर द एवरग्रीन प्लांट्स। एवरग्रीन प्लांट्स, evergreen plants, the plants which do not shed their leaves whole over the year। ऐसे पौधे, ऐसे पेड़, ऐसे ट्रीज या प्लांट्स जो पूरे साल, जिनके पत्ते, शेड मीन्स झड़ना, कि जिन पौधों के पत्ते पूरे साल नहीं झड़ते हैं उनको हम एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये साल भर कैसे रहते हैं? ग्रीन, इसलिए दे आर नोन एज एवरग्रीन प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स पाइन है, चिनार है, दीज आर फाउंड इन द जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर एरियाज। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें द लद्दाख रीजन इज ऑल्सो नोन एज द कोल्ड डेजर्ट। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एज वी नो वेरी वेल दैट व्हाट आर डेजर्ट्स। कि डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट्स क्या होते हैं? एरिया वेयर देयर इज नो रेनफॉल, नो क्रॉप्स, नो ग्रासेस, नो फ्रूट्स, नो वेजिटेबल, यानी ऐसा एरिया जहाँ पर कुछ भी ना उगता हो, उस एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं। लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या गिरती है? स्नो, आइस फॉल होता है, उस वजह से यहाँ पर इसको क्या बोला गया? कोल्ड डेजर्ट। और डेजर्ट का मतलब यहाँ पर भी वही है कि लद्दाख में देयर इज नो क्रॉप्स, नो वेजिटेशन। वेजिटेशन मीन्स नो क्रॉप्स, नो वेजिटेबल्स, नो प्लांट्स। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें प्लेसेस टू विजिट, कि जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर में ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जिनको विजिट किया जा सकता है या जिनको देखने के लिए लोग आते हैं। उन प्लेसेस के बारे में बताया गया है कि प्लेसेस टू विजिट, कि विजिट करने के लिए कौन कौन से प्लेसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर या श्रीनगर में। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में विजिट के लिए सबसे पहली जगह है श्रीनगर। उसके बाद है गुलमार्ग, दिस इज ए टूरिस्ट प्लेस। गुलमार्ग इज ए टूरिस्ट प्लेस विच इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी, जो अपनी ब्यूटी के लिए फेमस है।
यानी ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लगभग पूरे वर्ल्ड से। पीपल गो टू गुलमर्ग फॉर स्कीइंग एंड आइस स्केटिंग। गुलमर्ग में लोग मोस्टली क्या करते हैं, आइस स्केटिंग। आइस स्केटिंग का मीनिंग सभी को पता होगा, बर्फ के ऊपर तैरना। The region is also famous for gardens like Shalimar Bagh, निशांत बाग एंड चश्मे शाही। उसके बाद नेक्स्ट है कल्चर ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑफ पीपल्स लिविंग इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर कैसा है। कल्चर मीन्स कि वो लोग क्या पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, कैसे उनके फेस्टिवल्स है, वो अपने फेस्टिवल्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, कल्चर में। इसमें है द पीपल ऑफ कश्मीर वियर लॉन्ग लूज वूलन कोट्स कॉल्ड फिरोन। कि कश्मीर के जो लोग हैं वो लॉन्ग वूलन कोट्स की बड़े बड़े वूलन की कोट पहनते हैं, जिनको क्या बोला जाता है, फिरोन। फिरोन आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट आर फिरोन्स, कि फिरोन्स क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, दीज आर द लॉन्ग वूलन कोट्स वोर्न बाय द पीपल्स ऑफ कश्मीर। कि कश्मीर के लोगों के द्वारा पहने जाने वाले वूलन के लंबे लंबे कोट्स होते हैं, जिनको हम फिरोन्स बोलते हैं। बोथ मैन एंड वुमेन वियर इट विद ए शलवार। मैन हो या वुमेन हो, दोनों ही फिरोन को किसके साथ पहनते हैं, सलवार के साथ। वूलन रोब्स कॉल्ड गोचा एंड कंटो, सैशेस कॉल्ड सिरांग, कलरफुल शॉल्स एंड हैट्स कॉल्ड फिरोक्स आर सम ट्रेडिशनल क्लोथिंग आइटम्स ऑफ पीपल इन लद्दाख रीजन। ये सब ऐसे क्लोथ्स हैं जो लद्दाख रीजन में या जम्मू कश्मीर रीजन में लोगों के द्वारा पहने जाते हैं। दे मोस्टली वियर द वूलन क्लोथ्स, वो ज़्यादातर वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, बिकॉज द एरिया इज़ वेरी कोल्ड, क्योंकि वो जो एरिया है वो बहुत ठंडा होता है, इसलिए लगभग पूरे साल वो लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स में उनका मेन क्लोथ्स फिरोन एंड सलवार होता है, जिनको मैन एंड वुमेन्स बोथ वियर, दोनों पहनते हैं। उसके साथ साथ एक गोचा बोलते हैं, जिसको गोचा GOUCHA, ये एक वूलन का ही कपड़ा होता है, जिसको लोग अपने सर से या कानों को ढकने के लिए यूज करते हैं, सर्दी से बचने के लिए। उसके बाद है ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर मंथ्स, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी के मंथ्स होते हैं, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कीप देमसेल्व्स वार्म यूजिंग ए कांगरी। तो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए, कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए एक चीज़ का यूज़ करते हैं, जिसको कांगरी बोला जाता है। कांगरी क्या होता है, कांगरी एक चारकोल से भरा पोट होता है, हम ये कह सकते हैं कि एक पोट कंटेनिंग चारकोल, जिसमें बर्निंग चारकोल होती है, बर्निंग जलती हुई चारकोल को एक पोट में भरकर रखा जाता है, और इसको लोग अपनी बॉडी के पास में रखते हैं, ताकि वो उनकी बॉडी को वार्म या गर्मी दे सके, गर्म रख सके उनको सर्दी में। जब बहुत ज़्यादा सर्दी के मंथ्स आते हैं, कोल्ड विंटर मंथ्स आते हैं, तो उस टाइम लोग जम्मू कश्मीर या लद्दाख के लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए कांगरी का यूज करते हैं। कांगरी क्या होती है कि एक पोट होता है, जिसमें बर्निंग चारकोल भरा जाता है, जलता हुआ चारकोल एक पोट में भरा जाता है, जिससे कि वो उस पोट की जो आउटर कवरिंग होती है, बाहर का जो हिस्सा होता है, वो गर्म हो जाता है, और उस गर्म हिस्से को अगर वो लोग अपनी बॉडी के पास में रखते हैं तो इट प्रोवाइड वार्म, उनको गर्मी देती है वो, जिससे कि वो अपने आप को कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लाइक टू ईट राइस, राजमा, मीट एंड फिश। वहाँ के लोगों का अगर हम खाना देखें कि व्हाट दे ईट, वो खाते क्या है, तो दे मोस्टली ईट राइस, राजमा, मीट एंड फिश। दीज आर मोस्टली ईटन फूड इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। कि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में रहने वाले लोग ज़्यादातर राजमा, राइस, मीट या फिश का यूज करते हैं।
एक्सेप्ट दिस, उनके इसके अलावा उनकी एक फेमस ड्रिंक होती है। ड्रिंक यानी ड्रिंक का मतलब यहाँ पे पेय पदार्थ से है। लिक्विड, एक लिक्विड होता है जिसको क्या बोला जाता है, कहवा। जैसे हम चाय पीते हैं ऐसे ही वो लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए कहवा पीते हैं। कहवा एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस होता है जो बॉडी को हीट प्रोवाइड करता है, गर्मी देता है। तो ठंड से बचने के लिए वो लोग कहवा यूज करते हैं पीने के लिए। फिरनी इज ए स्पेशल स्वीट प्रिपेयर्ड इन दिस रीजन। फिरनी एक स्वीट का नाम है, जैसे हमारे यहाँ स्वीट्स मिलती हैं वैसे ही फिरनी भी एक स्वीट का नाम है जो जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है, प्रसिद्ध है। फिरनी वहाँ की एक स्वीट का नाम है ये। सम ऑफ द फेमस डिशेज ऑफ द यूनियन टेरिटरी इंक्लूड रोगन जोश, गुश्तबा, रिश्ता एंड याखनी। ये कुछ वहाँ के फेमस फूड आइटम्स हैं। इन लद्दाख टिंगमो, tukka, kulcha, bun, cholak and momos are some popular dishes that people eat. Butter tea is a popular drink from this region. ये सब है यहाँ पर कि लोग पहनने में, लोगों का पहनावा कैसा है, वो खाने में क्या पसंद करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, ये सब उनके कल्चर में आता है। और हम कल्चर ही पढ़ रहे हैं कि कल्चर इन नॉर्दर्न माउंटेन्स, की वहाँ के नॉर्दर्न माउंटेन्स में रहने वाले लोगों का कल्चर कैसा है। उसके बाद है द रीजन इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स होली प्लेसेस एंड टेम्पल्स लाइक द शंकराचार्य टेम्पल, अमरनाथ केव्स, वैष्णो देवी टेम्पल एंड रघुनाथ टेम्पल। इन सब के अलावा वो एरिया अपने टेम्पल्स या अपने टेम्पल्स के लिए भी फेमस है। वहाँ पर बहुत सारे फेमस टेम्पल्स हैं, जैसे वैष्णो देवी मंदिर है, वैष्णो देवी टेम्पल है, शंकराचार्य टेम्पल है, केदारनाथ केव्स है, केदारनाथ की गुफाएं हैं, सॉरी अमरनाथ केव्स हैं, अमरनाथ की गुफाएं जिनको अमरनाथ केव्स बोला जाता है। बहुत से ऐसे फेमस टेम्पल्स हैं जिनको लोग बहुत मोस्टली फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड से लगभग लोग इन सबको देखने के लिए आते हैं, इन फेमस टेम्पल्स को, होली प्लेसेस को। होली मीन्स पवित्र, पवित्र जगहों को देखने के लिए। देयर आर मैनी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज इन द लद्दाख रीजन ऑल्सो। रूफ, भान, पत्थर, हाफिजा, बच्चनगमा, स्पाओ, जैब्रो एंड तुसनामतो आर सम ऑफ द फेमस डांसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ये कुछ नेम्स दिए इन्होंने जो डांस फॉर्म्स हैं, डांस के नेम हैं जो लगभग यहाँ के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। हर स्टेट का, हर जगह का अपना एक डांस होता है। जैसे राजस्थान के डांस को क्या बोलते हैं, राजस्थान का फेमस डांस कौन सा है, घूमर। हरियाणा का हरियाणवी डांस बोलते हैं जिसको। तो इसी तरह से ये कुछ डांस के नाम दिए गए हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए फेमस है, वहाँ के लोगों के लिए फेमस डांस है ये। पीपल स्पीक सेवरल लोकल लैंग्वेजेस अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश सच एज कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, पहाड़ी, बाल्टी, लद्दाखी, पंजाबी, गोजरी एंड दादरी। हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर, एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी, पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज करते हैं जिनको लोकल लैंग्वेजेस बोला जाता है। बहुत सारी लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है वहाँ पर, एक्सेप्ट हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी दबा दिया था तो वो नहीं दबाया, ये कुछ आ गया था वो। Yes, except Hindi and English, there are many local languages used by the pupils living in the northern mountains. Northern mountains में रहने वाले लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर वहाँ के लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेजेस का भी यूज करते हैं। उसके बाद है ऑक्यूपेशंस, कि वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनी वर्क विच वी कैन डू फॉर अर्न मनी, कि पैसे कमाने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको हम ऑक्यूपेशन कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। कि हम अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या काम कर रहे हैं उनको ऑक्यूपेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है। The main occupation of the people of the region are farming, rearing of animals such as goats, sheep, yaks and weaving.
तो वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, खेती करना, रीयरिंग ऑफ एनिमल्स यानी डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना, जैसे सेप्स हैं, गोट्स हैं, याक्स हैं, उन सबको अपने डोमेस्टिक यूज के लिए पालना वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। वीविंग, वीविंग मीन्स बुनना, हाथों से कपड़े बुनना, उन पे कुछ भी बनाना, हम कह सकते हैं वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनना, जैसे हाथों से कपड़े बुने जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? वीविंग ऑफ क्लोथ्स। तो वहाँ के लोगों में कुछ ऐसे स्किल्स हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत फेमस हैं कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर की, जैसे कश्मीरी शॉल्स हैं, स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं जो हाथों से बनाए जाते हैं। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स लाइक बार्ले, मेज, राइस एंड व्हीट। वहाँ पर बार्ले, मेज, राइस एंड व्हीट जैसी क्रॉप्स, फसलें उगाई जाती हैं। वेरियस फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, चेरीज एंड प्लम्स आर ग्रोन इन द ऑर्चार्ड्स। इनको ऑर्चार्ड्स में लगाया जाता है। ऑर्चार्ड्स क्या होते हैं? ऑर्चार्ड्स को हम बोल सकते हैं बगीचे, जहाँ पर फ्रूट्स उगाए जाते हैं उनको बोलते हैं ऑर्चार्ड्स, बगीचे। Saffron known as kesar. Kesar is also grown in the Jammu and Kashmir region in cold areas. Saffron always grown in cold areas, and the main in India mostly saffron is grown in Jammu and Kashmir या Ladakh region. Dry fruits like almonds and walnuts are also grown here. Weaving is a major occupation of the people of the region. Weaving वहाँ के लोगों का एक major occupation है, मुख्य व्यवसाय है। Carpets, blankets and certain kinds of shawls are also woven here. Carpets बनाए जाते हैं, blankets बनाए जाते हैं और बहुत सी तरह के shawls बनाए जाते हैं। Pashmina goats found in the high altitudes of Himalayas are reared for the fine pashmina wool. वहाँ पर wool निकालने के लिए, ऊन के लिए goats को भी rear किया जाता है, पाला जाता है। वहाँ पर goats को पाला जाता है ताकि वो लोग उनसे ऊन इकट्ठा कर सके और उस ऊन से they weave many things, वो वहाँ से उस ऊन से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। The finest quality of shawl is made from this wool. शॉल्स की जो फाइनेस्ट क्वालिटी यानी सबसे अच्छी जो क्वालिटी बनती है वो पाशमीना वूल से बनती है। उसके बाद है इसमें नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश। उससे पहले हम करेंगे इसमें You have to write the hard words of this chapter in your fair notebook. You have to write the hard words. Hard words में आप लिखोगे from starting. सबसे पहले आप लिखोगे स्कैनिक, SCENIC, स्कैनिक। सेकंड नंबर पे आप लिखोगे एवरग्रीन। थर्ड है टेरिटरीज। उसके बाद है आपका पेंगोंग। You can write by your own also कि जो words, the words those you find difficult in speaking, जो words आपको बोलने में difficult लगते हो, you can write them in your notebook. At least 10 word meanings you have to write. 10 word meanings you have to write in your fair notebook from chapter number 3. And try to fill the exercise of this chapter by your own. अपने आप से इस चैप्टर की एक्सरसाइज फिल करने की कोशिश करना, if you can do, अगर आप कर सकते हो। अदरवाइज I will fill your exercise in our next class. हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज को फिल करेंगे। बट वंस ट्राई बाय योरसेल्फ, आप अपने आप से ट्राई करें इसे फिल करने की। आफ्टर दिस वी रीड अबाउट द हिमाचल प्रदेश। इसके बाद हम अपने अगली क्लास में हिमाचल प्रदेश के बारे में रीड करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से प्लेसेस है विजिट करने के लिए, वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। और उसके अलावा कुछ और स्टेट्स हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स के, जैसे उत्तराखंड है, सिक्किम है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इन चीज़ों के बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में हम बात करेंगे कि इन स्टेट्स में क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है।
ये सब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए आपको यू हैव टू रीड योर चैप्टर नंबर 3 अप टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश तक आपको इस चैप्टर को रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन कंसल्ट फ्रॉम मी पर्सनली। तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो कि मैम व्हाट विल कम इन दिस टॉपिक, कि इस टॉपिक में कहाँ पर क्या होगा। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू।